مرحبا شان عید 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 مرحبا عید آئی عید آئی عید آئی خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام شان عید میں، اور ایک بڑا خوبصورت موضوع یہاں چھڑ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو چلو کسی نہ کسی حد تک کمپلیٹ کر لیا جائے۔ تو یہ بات کوالٹیز کے حوالے سے، مطلب میں نے غوری صاحب آپ بتائیے، یہ جو 3 قسمیں ہیں قیمے کی، کس کو کریلوں کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے؟ نوشاہد صاحب بات یہ ہے کہ جہاں پہ کریلے کی بات آئے گی نا جی، آپ اسے دائیں سے پکڑ لیں بائیں سے پکڑ لیں اوپر سے نیچے سے، بات جو ہے وہ مٹن پہ ہی آئے گی، بکرے پہ ہی آئے گی اور ساتھ میں کریلوں پہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ ثانوی حیثیت میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں تو اس لیے ثانوی حیثیت میں اس کے کوئی فائدے بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ نہیں، ثانوی حیثیت کے جو فائدے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں مرغوب حمدانی صاحب جو ہے قبلہ سینئر ہیں، وہ حافظ صاحب جو ہے وہ بتائیں گے۔ چلیں آج تک یہ جو کریلے قیمے کی ٹرم ہے، اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے جناب قوالوں کے ساتھ، پتیلے بندوں کے ساتھ، اور سر کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نا وہ اس کو بلکہ جو سر کا جو ایمان ہے نا جی اس کا حصہ بنا دیا، ورنہ سر ایمان والا نہیں ہوتا جب تک قیمہ کریلے نہ۔ ساجد چشتی صاحب کو آپ سریلے بتا رہے تھے، تو یہ قیمہ کریلے زیادہ کھاتے ہیں کہ ویسے ہی؟ آپ ذرا اندازہ کر کے بتائیے۔ نہیں دیکھیں، اصل میں بات جو ہے نا، بلاتی مرغا جو ہے نا، اس کا تو میں کہتا ہوں جس سے خود نہیں چلا جاتا اس کو کھانے والا کیا چلے گا۔ اچھا جی۔ اور ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بلاتی مرغے، وہ نشیوں کی طرح سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب دیسی مرغے اذانیں دیتے ہیں، ہمارے گھر میں انہوں نے پالے تھے بچوں نے، وہ تہجد کے ٹائم پہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری منزل سے اذانیں دیتے تھے دیسی مرغے، اس میں یہ پاور ہے۔ لیکن قیمہ اگر یہ کریلے کے ساتھ بڑا جدید دور ہے، اس میں کوئی بعید نہیں کہ یہ ہمارا برائلر بھی اذانیں دینا شروع کر دے۔ نہیں ابھی یہ بات ہے، مطلب اس کو تو آپ ایک مخصوص نہیں، وہ کوئی انوائرمنٹ کوئی انجیکشن لگائیں گے اذانوں کے لیے، کوئی انجیکشن لگائیں گے پھر دے گا، ویسے نہیں دے گا۔ مٹن اور مرغی کا چاہے دیسی کا بہت اچھا ہے۔ بلاتی مرغے سے الرجی ہوتی ہے، دیسی مرغے سے الرجی نہیں ہوتی، لیکن دیسی سے نہیں ہوتی۔ کریلے کے ساتھ ملانے کے لیے مٹن بہترین ہے۔ دیکھیں ٹیسٹ جو ہے وہ مٹن کا زیادہ ہے نا، مرغی کا دیکھیں نا سائز چھوٹا ہے، چاہے دیسی ہے۔ میرا خیال میں عید کے کسی پہلے پروگرام کے اندر یہ ڈسکشن ڈیٹیل سے ہوئی اور فائنل ہو گیا، اور کنکلوڈ ہوئی۔ حکیم حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب فرما رہے ہیں کہ کریلے کے ساتھ صرف بکرے کا قیمہ اٹیچ ہو سکتا ہے۔ اس کا سائز دیکھیں نا، اس کا قد کاٹ دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، پاور دیکھیں۔ اگر کریلوں کو خوش کرنا ہو نا، کریلوں کو خوش کرنا ہو تو پھر بس مٹن ہے۔ اچھا، یہ آپ نے یعنی اس کا پریکٹیکل مشاہدہ کیا کہ کریلے خوش بھی ہوتے ہیں؟ اس کا مزاج جو ہے وہ بس یہ معصوم سا جانور جسے بکرا کہتے ہیں، تو اس کی کہہ لیں کہ مطابقت جو ہے اس سے اپنا اگر بنائیں تو۔ اچھا صاحب، یہ چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کریلے پھر جتنا خوش ہوں گے مٹن تو پھر اتنا غمگین ہو جائے گا۔ اصل جی بڑوں سے بڑے بھائی وہ تایا چچا جب وہ لوگ خریدتے تھے نا تو دکان پہ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ بکرا کو لوا کے دیکھ کے چل لوا، ایسا ہی وہ اچھا یہ ایک ٹرم ہے پنجابی۔ ہارڈ بکرا بھی جو ہے نا وہ مزاج خراب کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جان پہچان رکھتے ہیں کہ یار یہ گوشت کیسا ہے، اچھا اسی گوشت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تھوڑا سا وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ قیمہ کریلے کا مزہ نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کریلے بھی اچھے ہوں اور وہ قیمہ بھی ویسے ہی اسی مزاج کا ہو تو بکرے کے حساب سے پھر اس کا ٹیسٹ بنتا ہے۔ واہ واہ۔ اچھا میں ناظرین چاہتا ہوں کہ چلیں اس موضوع کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہمارا جو نعت خوانوں کا تعلق محافل سے ہوتا ہے، چلیں غوری صاحب آپ سے بھی، وصاف بھائی آپ سے، اب حافظ صاحب تو ہمارے ہو گئے سینئر، ان سے یہ بات نہیں کرتے۔ اگر عید والے دن ہی کو محفل آ جائے، کسی نے کہہ دیا جی محفل نعت ہے، اور ٹائم بھی ہو کہ 9 بجے محفل ہے، صبح 9 بجے محفل ہے، تو پھر بتائیے کیا معاملات ہوں گے؟ سر اس سے خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سبحان خوشی کا دن ہو اور پھر حضور کے تذکرے ہوں
खुशी तो दोबाला हो गई ना जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप वाली बात भी आ गई ना, ईदी भी डबल आ जाएगी। अल्लाह, एक एस्पेक्ट मैंने बयान कर दिया, बात आपने भी ठीक एक जाविया मैंने दे दिया, एक वसाफ भाई ने दे दिया। जी। देखे ना, ईद सर एक तो सुन्नत भी है ईद, और फिर ईदी भी मिलनी है, और फिर सरकार का जिक्र भी हो जाएगा, डबल खुशी हो जाती है ना, डबल हो लेकिन जाती है। वसाफ अगर तुसी ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪੱਕੇ ਨਾਰਾਜ਼। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? मेरे से वाकई तो ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन देखे ना हमारा बच्चा है ना जी, नहीं, देखिए हम देखिए एहतियातें बता रहे यही सब बंदा एक्सपीरियंस ही बोल रहा होता है ना अपना। नुशाही साहब, आप किस तरह ही हाँ, मैं कैसे बनाता हूँ? आप कैसे क्या बात है। वाह, मैं तो खूबसूरत सवाल है एक जी। रूटीन है जी, ईद की नमाज ज़रूर पढ़नी है नहीं, और वो तो फिर पढ़नी ईदी पड़ती है। ज़रूर देनी है। अच्छा ना देना तो यकीन आज करें देंगे आप? फैमिली में एहतजाज शुरू हो जाता है। नहीं आज देंगे आप ईदी? मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तो हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद हमदानी साहब मौजूद हैं बिल्कुल और जी, बिल्कुल इन्होंने भी बनती ईद है। देने की बात की है। बिल्कुल और मेरे की है। ख्याल में इंशाल्लाह ताला आज ये इंशाल्लाह जी, 5,000 के नोट से ऊपर ऊपर शुरू करेंगे। इंशाल्लाह माशाल्लाह। 5,000 से ऊपर नोट नहीं आया अभी, मतलब कि ना लेने वाली बात हो गई ना ये तो। लेकिन वसाफ अपने वालिद गिरामी को किस तरह देखे सपोर्ट कर रहे हैं। तो शहीद साहब, मैं हाई साहब की बात को इंडोर्स करते हुए मैं थोड़ा सा इंटरप्ट भी करूंगा कि किबला हाफ साहब सबसे सीनियर हैं और हम 2-3-4 लोगों से आप भी सीनियर हैं। अल्लाह, तो मिशाई साहब इन सारों में सबसे जूनियर मैं हूँ। हाँ जी, तो इसलिए तो सारों की ईदी तो फिर मेरी तरफ आती है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा पहले आपके वालिद गिरामी सबको दे लें, इंशाल्लाह फिर आपकी तरफ वो सारों को सारों आएंगे। नहीं, अबू सारों को देंगे ना, वो सारों से वसूल में वापस कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं एक सवाल, एक इज्तिमाई तौर पर, कि अभी कीमा करेले की बात हुई। अच्छा हर एक को कोई ना कोई ज़्यादा डिश पसंद होती है, और ये सब आप बताइए खाने में प्रेफरली कौन सी डिशेस पसंद है आपकी, सर ताकि पता चले हमारे नाजरीन को। सर काले चने काले चने, शोरबे वाले। अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा ये फर्स्ट नंबर पे है, ये फर्स्ट कीमा करेले से भी पहले। जी पहले। वो खैर होगा। ये भी बड़े 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 मज़ेदार बनते हैं जी, ताकतवर चीज़ है ना ये भी। ताकतवर। अच्छा ये आपने स्पोर्ट सिर्फ किया, बाकी बंदे हैरत से देख रहे हैं, वजह क्या? नहीं, इसमें एक और जुमला भी मशहूर है ना कि चने को हॉर्स पावर कहा जाता है। हॉर्स पावर। अल्लाह खैर करे। अच्छा इसके अलावा इसके अलावा फिर वो जो कीमा करेले। चलो, इसके अलावा कीमा करेले बताइए चिश्ती साहब। जी सब्जियां ज़्यादा खाने को तरजीह देता हूँ। कौन सी सब्जी? सारी सब्जियां, गर्मियों में माशाल्लाह सब्जियां ज़्यादा होती हैं। भिंडी और जिस तरह ये कद्दू शरीफ हो गया। अच्छा ये इतना सब्जियों के बारे में आपने बात तो कर दी, लेकिन सोच सोच के ये देखें, जैसे जैसे भिंडी होती है, जैसे जैसे ये तो कोई तरीका नहीं ये है जिस सर। तरह नुशैब भाई, जिस तरह साजिद भाई ने बताया ना, धनिया गोश्त और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से और एक सीक्वेंस के साथ करेले, इस सीक्वेंस में इस सब्जियों पे नहीं आए वो। डिस्क्राइब कर दी। अच्छा वैसे ना एक सब्जी ऐसी है जो पंजाबी कहते हैं ना, वो बदो बदी बढ़ जाती है जी हर एक दे नाल। आलू 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 शरीफ। शरीफ उसके बारे में क्या ख्याल है? बड़ी लजपाल सब्जी है जी। हर सब्जी के साथ नहीं भा करती है। तो अच्छा ये लजपाली जब ये गोश्त के साथ करती है ये सब्जी, जी जी तब कैसा होता है? अच्छा है अपना, वो कह लें कि जिस तरह फैमिली में, वही मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो दूसरी जो सब्ज़ी होती है उसको भी छुपा लेती है। तो हर में कोई भी सब्ज़ी लगा लें, आलू उसकी जुज़ बन जाता है। अच्छा मैं छोटी सी बात शेयर करूं आपके साथ कि हमारे एक नज़ीर निज़ामी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद जी, कौन नहीं उन्हें जानता। उनके एक शागिर्द थे। अच्छा मैं उनकी महफिल पे एक दफ़ा गया तो ये बात उन्होंने मुझे, नाज़रीन बड़ा मज़े का ये छोटा सा वाक़या है। तो उन्होंने कहा जी मैं महफिल पे गया तो आलू गोश्त पका हुआ था लंगर के तौर पे ना, तो जब वो डोल के अंदर उसने आलू गोश्त लिया हुआ था, जब मेरे तक पहुंचा जी जी तो बोटियां ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह। अच्छा मैंने उसे कहा कि ओ पुत्र ऐ ज़रा डोल नीवा कर, तो मैंने बड़े गौर से देखा तो अब वो कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं जी एक बोटी नू कोई 60-70 आलूआ ने घेरिया सी। अच्छा मैंने उससे कहा, मैंने कहा पुत्र ये बेचारी जी की कसूर है,
جی جی ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ वाह वो हमारे एक सनाखान रसूल दोस्त हैं, जी जी तो वो किसी महफिल पे गए तो अब वो महफिल जो बानी महफिल थे उनके हवाले से कहने लगे जी माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है इन पे, ये कह लें कि 2-4 मुरब्बे हैं इनके। जी तो जब लंगर शरीफ आया तो उसमें ज़्यादा आलू शरीफ आए बड़ा थे, खूबसूरत बोला आपने, मुरब्बे हैं माशा- तो वो जब देखा उन्होंने तो वो फरमाने लगे कि ये जो 3-4 इनके मुरब्बे हैं जी जी ये आलूओं के हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा शाही साहब, बस साहब बेटे माशाल्लाह आपने शाही आप मेरे ख्याल को बात की जी सईदुल्लाह साहब। आप क्या पसंद करते हैं? अच्छा मैं खाने में जो पसंद करता हूँ, घर में ज़्यादा क्या पकता है? मैं यकीन करें कि ज़्यादा लंबा शोरबा ना हो, आलू और मटन, सुभान अल्लाह। सुबह ये डिश जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये है। और शायद साल में एक मर्तबा भी मैं कम से कम ये कहकर कभी नहीं पकवाता कि कीमा करेले पकवाएं। नहीं, हिकमत के हिसाब मुझे से आज देखा कर- इम्पोर्टेंस का पता चला तो शायद मैं कहना शुरू कर दूँ। शुरू कर दें जनाब, इसके आप फ़ायद जो है ना वो ये आप दोस्तों को नाराज अगले दिन ही करने वाली देखेंगे। बात कर नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैं पैरवी करूँगा, अब तकलीद होगी इंशाल्लाह। नहीं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा शोरबा और मटन जो उसमें बना अच्छा है। और वो देसी घी के अंदर हाँ। पकाओ, पकाओ। असल थोड़ा खाएं। ये गाने वालों की ये असल खुराक है, अच्छा जी, अच्छा इसका ताल्लुक गले के साथ। गले के साथ बहुत अच्छा अच्छा जी। है। शोरबा और आलू आलू अगर ना भी शोरबा गोश्त हो ना तो अच्छा ज्यादा एक सवाल मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट, ताकि हमारे जितने पढ़ने वाले हैं, साजिद चिश्ती साहब भी हैं, मैं करूँगा, लेकिन पहले वसाफ हमारा नौजवान सना खान, आपने अब्बू से जब नातें सीखी तो दौराने यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान कभी फेंटी छेंटी भी लगी? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह फटी? कभी भी नहीं। नहीं ये हो नहीं, डांट हमें तो डांट भी बहुत कम पड़ी है। नहीं कभी फेंटी नहीं लगी है? नहीं अब कभी नहीं देख लें टीवी के सामने अपने। सिर्फ नहीं बिल्कुल मेरी तबीयत जो है वो जलाली नहीं है ना, जमाली है। इसलिए नहीं कभी- माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी नहीं। कभी नहीं, बल्कि तो कोई अच्छा सब बेगम जमाली ले आके देती है तो या जलाली? वो जला ली। वो साहब खुद कह रहे हैं कि वो जलाली। इतना बीते ही दिन पता लगेगा ना, मैं इतना बीते ही दिन पता नहीं, लगेगा। मैं अपनी बेगम की नहीं, जलाल को जमाल में बदल। अफजल जी, मैं अपनी बेगम की नहीं, अब्बू की बेगम की बात कर रहा हूँ। ताड़ी खैर हो जाए। अच्छा यानी कि अम्मी से फेंटी पड़ी हुई है। हाँ जी, वो तो छोटे छोटे होते तो काफ़ी बड़ी हुई। अच्छा तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हाफिज साहब चूंकि जलाली हैं, वो अम्मी से कह देते हो कि आज ने काम खराब की नहीं, और इवन आज इसको फेंटी यहाँ तक होता था कि अगर घर से बाहर भी निकलते थे, अब्बू तो माशाल्लाह अब्बू की मसरूफियत बड़ी होती थी, तो कहीं मैं बाहर खड़ा हो जाना तो अम्मी ने पीछे आ जाना, कौन से लड़कों के साथ खड़ा हुआ है, किस सोसाइटी के अंदर खड़ा हुआ है। वो बड़ी निगरानी अम्मी ने बड़ी की है इस मामले में। अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम उनको सलामत रखे। आमीन आमीन। मामा ठंडियाँ ठंडियाँ छाँव, छाँव, बिल्कुल हकीकत इसमें है। कोई शक नहीं। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस नशिस्त को नहीं, आपको कीमत शुक्रिया। बख्शी है, तशरीफ लाया आप। शाही साहब, अल्लाह करीम ये भी आपकी बात है ना, इजाफा फरमाए। पहले ये बाद में आता है मावा ठंडियां छावा, अल्लाह बाप सिरां दे ताज ताज मोहम्मद। मामा ठंडी बाद में आता है मावा ठंडियां। वाह वाह। क्या देखें, कहने, क्या ये कहने। और ये जो ट्रैक है ना जी, बहुत खूबसूरत। ये इसको हमने मद्देनजर रखना है बिल्कुल कि ऐसे बाप सिरांदा ताज मोहम्मद, बिल्कुल बिल्कुल के बाप देखें, बाप जो है ना वो जन्नत का का बहुत बड़ा दरवाज़ा। मर्तबा है जी। बाप की रजा में अल्लाह की रजा, बिल्कुल बाप खुश होगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा। बिल्कुल हकीकत। और जब दरवाजे से गुजरेंगे तभी जन्नत तभी तक जन्नत पहुंचेंगे। मिलेगी। ये बड़ा शानदार ट्रैक हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसी तरह ही है शेर। अल्लाह करीम आपकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए और नात खानी में आपको कामलियत अता फरमाए, शोहरत अता फरमाए, हमारी दुआ है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होते हैं। ईद के इन पुरमसरत लम्हात में आप हमारे साथ रहिए। आपको प्रोग्राम शान ईद में और ईद के पुरमसरत लम्हात में हमारे खूबसूरत ये स्टार्स, हमारे मेहमान आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं और अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है हमारी नात खानी के मैदान में एक बहुत खूबसूरत नाम और बड़ी खूबसूरत आवाज़। अल्लाह करीम ने पाकिस्तान में, फिर दुनिया के दीगर ममालिक में उन्हें आक़िल इस्लाम के ज़िक्र के हवाले से शोहरत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम तसद्दुक़ रसूल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ये शहज़ादा, जी जी इसका नाम ये खुद बताएगा। बताएं जी।
मोहम्मद मुस्तफ़ा। और तेरी खैर हो जाए। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। और इसी तरह अब्बू का नाम भी बता दें। तसद्दुक़ रसूल। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये इनका नाज़रीन नाम इस तरह कर दिया जाए, जी जी गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। माशाल्लाह, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाशुबा जी, बिलाश। ऐसा तो नाज़रीन हमारे साथ ये आपकी हर दिल अजीज़ और पसंदीदा शख्सियात मौजूद हैं। तसद्दुक़ रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ज़रा अपना हिस्सा डालिए बिस्मिल्लाह। कि कैसे ईद गुजार के आए हैं और लेट क्यों आए हैं आप। आज क्योंकि आपको पता है कि ईद के मौके पे जो है वो हमारा घर भी बड़ा है, तो सब अहबाब जो है ना वो हमारे घर आते हैं वालिद साहब को मिलने, वालिदा से। तो आज क्योंकि इसने भी आना था तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी ताख़ीर का सामना इसका करना मतलब फिर फिर अच्छी तरह जेब की सफाई हुई होगी। पड़ा। जी वो तो फिर रूटीन है, ज़ाहिर बात। रूटीन है। नहीं तो जेब भरी भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी भरती भी है, और फिर हमारे से जो छोटे हैं नेट रिजल्ट क्या रहा। नेट रिज़ल्ट तो इसमें जो बड़ा होता है ना वो खसारे में रहता है ईद। अच्छा खजारे में रहे। खजारा तो फिर होता ही नहीं है। हमने अपने मेहमानों के साथ बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें, उनमें से एक बात आपकी तरफ अभी मैं लेके आता हूँ। आप सिर्फ पहले हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी जी हमने खाने से मुतल्लिक बड़ी गुफ्तगू की है। जी जी। उसमें मटन भी आया, बीफ भी आया, मुर्गी भी आई, सब्जियां भी आई हैं। आपको खाने में पसंद क्या है। मेरी जो मतलब फेवरेट डिश है वो है बिरयानी, मैं वो खाता हूँ। अच्छा आमतौर पे ये चावल खाने वालों के हाँ बारे जी, में कहा जाता हाँ है जी, कि इनका ऐसे गला ही, ख़राब हो जाता ऐसे ही, है। ऐसे ही। चलें, लेकिन हकीम हाफिज़ मरगूब हमदानी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैंने आप चावल खाने से क्या गला ज़्यादा चलता है क्या। नहीं, ऐसा तो नहीं इसको है। पसंदीदा डिश आपने बना लिया। किसी भी चीज़ की जो है वो कसरत जो है उससे मेरा ख्याल इफ़ेक्ट होता है। अगर उसको मुनासिब हद तक इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो नहीं इतना नहीं ज़्यादा। हाँ ये तो अच्छा, आप बीमारों सब की क्या गज़ा ताल्लुक है जी। चावलों का कोई गले शले के साथ। हम कश्मीरी हैं, चावल का- बचपन से चावल खा रहे हैं, महफिलों पे भी खाते हैं, महफिल से पहले भी खाते हैं। चावल से नहीं होता, चावलों के साथ कोई सालन कोई डिस्टर्ब करता है जो माफिक ना है। या चावल खा रहे हैं उसमें चिकनाई है तो ऊपर से ठंडा पानी पी नहीं लिया। अगर चलें इसी हवाले से ये बात नाजरीन तक और हमारे नातखानों तक सब तक जाए कि कहा यह जाता है कि नहीं चावल नहीं खाने वाला जनाब नहीं वो ऐसे बस अपनी अपनी तबीयत होती है ना। नफसियाती। किसी को हाँ कोई वहम भी होता है, एक नंबर वहम का कोई इलाज नहीं, महंगे से महंगे डॉक्टर के पास इलाज नहीं। कुछ लोगों को वहम है, कुछ लोगों की तबीयत को माफक नहीं आता, कुछ मजबूरन होता है। लेकिन अक्सरियत में कोई नुकसान नहीं इसका। असल नुकसान गले को उसी वक्त होगा जब वो गरम गरम चावल खाएं, सालन ठंडा पानी पिए। चिकनाई है ना। हाँ जी। बुजुर्गों ने कहा हुआ कि पहले पानी पीना सोना है, दरमियान में पीना चांदी है, बाद में लोहा है। क्योंकि उसने मैदे को भी डिस्टर्ब करना है, गले को भी करना है। ठंडा पानी हो तो जमाव नहीं करेगा, चिकनाई गले में है तो उसमें ठंडी बोतल पी रहे हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जब वो तो गला इफेक्ट होगा। वो गले में अच्छा, यही बात सिर्फ चावल नहीं करते। मैंने ये सुना हुआ है कि तलाश करनी चाहिए वो चीज़ जो आपका गला ख़राब कर रही है, फिर वो चीज़ छोड़ दें, बाकी चीज़ें खाते रहें। बहुत अच्छी बात है। इनाम भाई जी ये बात ठीक है चावलों वाली। आप नहीं, सबने चावल गले को कुछ नहीं कहते हैं। कुछ नहीं कहते। वो चलें आज ये तो जैसे कम से कम तय हुआ। बड़े हैं कि बेचारे बोल ही नहीं सकते। जब भी गला और गौरी खराब साहब होता देखिए है, ये वो तो किसी तय और हुआ ना वजह कि अब जो कहेगा कोई नात खान या को हमारे कवाल हजरात में कोई या कारी साहब कि ना चावल नहीं जी, वो मैंने चूँकि तिलावत करनी है, नात पढ़नी है, गला ख़राब हो जाएगा। तो ये बात तो तय हुई बेहतर बताया जी, जी। बेहतरीन आपको नुस्खा भी बता दिया जी आप सब ने और खाने की तरकीब भी बता दी है। कि उसके बाद ठंडा खाने के चावल तो वैसे भी बीमारों की ग़िज़ा है। अल्लाह हो। लाइट, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लाइट ये है। बात और अजीब हो गई। पूछ लें, क्यों जी ये आप तो बिरयानी बड़े क्योंकि बहुत हल्की ग़िज़ा होती है ये। तसद्दुक़ भाई तो ये बीमारों की ग़िज़ा क्या दिया। सईद भाई क्या आप कोई चावलों के साथ क्या? मोशन लग जाए तो ऐसा होता है ना, कहते हैं कि खिचड़ी पका के हल्की, हाँ लाइट है ना, बिल्कुल लाइट, जल्दी हजम हो जाती है, जल्दी हजम हो जाती है। हल्की ग़िज़ा है ना। जो हल्की ग़िज़ा है। गला ख़राब की आप बात कर रहे हैं, वो जिस तरह हाफिज़ साहब ने बताया, चावल के गलत इस्तेमाल से चावल के ऊपर से पेप्सी पी ली या ठंडा पानी पी लिया, हाँ फिर गला ख़राब हो जाता है। तब वो तो देखें फ्राइड चीज़। अच्छा ऐसा होता भी है, फ्राइड नहीं भी चीज़ के होता बाद है, ठंडा पानी ले लें। मुझे अक्सर चावल खाता हूँ मैं, मुर्ग पुलाव पसंद, गरम चावलों के साथ में कोक इस्तेमाल करता हूँ, ठंडी आपका तो रियाज है ना सर। और समोसा ये बात गरम और ठंडी आपको पेप्सी क्या होगा? या कोक, ये मैं
यानी जब से वो अच्छा, संभाला मैं ऐसा वक्त है करता ना, हूँ। अच्छा इनाम भाई, मैं ना एक इज्तिमाई सवाल, ताकि हमारे क़ुर्रा को, नात खानों को फ़ायदा हो। गौरी साहब, ये कभी जो सांस की प्रैक्टिस के हवाले से जी पढ़ते पढ़ते आपका सांस रिड्यूस होता है, इसकी वजह क्या होती है? आम तौर पे हमारे, क्या उनकी नहीं, एक्सरसाइज वो में कमी? गले की अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, जाहिर है उसमें खराश हो या कोई मसला हो तो उससे भी वो सांस का हो जाता है मसला। हिकमत के लिहाज से इसकी वजह भी एक भी है। वो बताएंगे बिल्कुल। लोगों का, बाद लोगों का घबराहट धड़कन होती है तो ईसीजी कराते हैं, ईसीजी उनकी क्लियर निकलती है, उनका ताल्लुक होता है मैदे से, मैदे की वजह से घबराहट धड़कन होती है। जब मैदे में खुश्की हो जाए, पढ़ने में भी ऐसे ही होगा, अगर मैदे में कुछ बोझ है, वो गड़बड़ है मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। गौरी भाई आप बताइए, नौमान गौरी साहब, कि यानी फेफड़े आपके जो है ना, लंग्स पावरफुल हो और सांस पक्का हो, ये किस तरह हो सकता है? बुनियादी तौर पे तो जो हमने पहले बात की है कि खुराक तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़ोर लगता है, ठीक है। जैसे हाई साहब बैठे हैं, बरादरान साजिद भाई भी बैठे हैं, बड़े ये ऊपर वाले सुरों पे पढ़ते हैं, साजिद भाई को भी हमने देखा है। तो खुराक अच्छी हो और रियाजत अच्छी हो, तो मेरा ख्याल ये कहता है कि प्रॉब्लम बड़े कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आपकी रियाजत कम है और उसमें जो है वो आपने पढ़ इस कदर ज़्यादा ऊंचे सुरों में या ज़्यादा ज़ोर लगा ले, तो फिर तो गला ख़राब भी, खुश्क भी होगा, सांस भी टूटेगा, छोटा भी होगा। तो इसलिए यानी रियाज ज़्यादा ये है कि एक्सरसाइज, अगर आपका रियाज ज़्यादा है तो फिर सांस जो है वो आपको कम, बाकी जो यानी मेन फोकस आप रियाज के ऊपर करें, प्रैक्टिस है, वो चीज़ें सारी इन प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है। रियाज भी और परहेज भी, और ठंडी खट्टी चीज़ों का परहेज। बिल्कुल हाँ वो हाफिज चीज़ साहब, मैंने ये देखा है नुशाई साहब के कव्वाल हजरात माशाल्लाह बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे नात खां भी परहेज के तो पे के एक नुक्ते के करीब नहीं है वो, जितने लेकिन वो पढ़ते भी हैं और सब। ये बरकत है या फिर सरकार के जिक्र की ये बरकत वो है। जो लेकिन ये जो है ना, जो तसद्दुक भाई बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केस है, ये मेजॉरिटी में नहीं है इस तरह के। हर बंदा जो है मैंने मेजॉरिटी में वही देखा है, बेहतियाती करते हैं, ये सही बात है। मैंने मेजॉरिटी में देखा। बस जैसे ही लंगर खुला उधर ही तो चेक होते हैं। मैं ना अफजल नुशाई साहब, मैं छोटा था तो हाफिज साहब के मैं दवाखाने चला गया, गला बड़ा ख़राब था। हाफिज साहब, मैं बड़े शौक से गया कि हाफिज साहब के पास जाऊं, मीठी मीठी दवाई मिलेगी और खा के ठीक हो जाएगा। हाफिज साहब ने मुझे दवाई दी, दवाई का नाम ही ना याद हो जनाब, वो कोई यूनानी दवाई थी, आज तक फिर वो ऐसा इन्होंने याद कराया हुआ है, लिख के दिया इन्होंने। वो क्या उसका नाम था जी अतरीफुलस्तुखदूस। अच्छा, ये हाफिज साहब ने मुझे दी ये कि अरबी का नाम है जी, पता नहीं क्या था, बहरहाल वो एक थी, वो जेल सी माजून पुराने वक्त में माजून है। अतरीफुलस्तुखदूस। की इस्लाह करती गई। हाँ, अच्छा जी। अगर इन्होंने हमदानी मुझे गले साहब के आपको उसमें से- लौ के सिपस्तान भी दे देते, ये भी दी थी, ये भी दी थी इन्होंने, बिल्कुल। ये भी गले के लिए दो बहुत तीन चीज अपना है, अपना जाली सईदुल्ला साहब, आप हर मामले में जब भी बात हुई है ना, ताड़ी गल विचों वखरी आई है। मैं असी ते अपने प्रोग्राम च इनवाइट किया है हकीम हाफिज मरगूब अहमद हमदानी साहब, तो लगता हिकमत का टाइटल तानू देना पड़ेगा। नहीं तुसी हकीम हो जाओ। हमदानी साहब हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, माशाल्लाह। हमारा बहुत ज़्यादा का। हमारा असासा है, बिल्कुल और दुआ है ये कि फख्र है आज पाकिस्तान खुशी के दिन का सदका अल्लाह हमारे इस असासे की हिफाजत फरमाए और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी। आमीन आमीन। अच्छा, मैं एक इज्तिमाई तौर पर अपने सारे मेहमानों से एक सवाल, चूँकि ये ईद का मौका है, थोड़ी सी ज़रा खुशियों वाला मामला भी होना चाहिए। कोई बंदा भी जवाब दे सकता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जिसको शरारत का नाम दिया जा सके और फिर आपकी उस हवाले से सेवा हुई हो, यानी वालिद साहब से हो सकती है, किसी रिश्तेदार से हो सकती है कुछ। मैं कहता हूँ कि ये जो नाथखान, कारी, कव्वाल, ये हो नहीं सकता शरारती ना हो। मेरा ये मौक़िफ़ है, आप बैठ के इनके साथ डिस्कस करके चेक कर लें। तो बताइए, अब इसमें कंजूसी नहीं करनी। एनी वन ऑफ यू जी, याद करें। पहले इना भाई आप ये हम सबसे पहले साजिद भाई से पूछें। ये देखिए, बात आसादार होगा। छुपाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये सबसे छोटे हैं, इनसे पूछें। मेरा तो अभी शरारतों का दौर चल रहा है। चल रहा है ना। इसी दौर से शुरू कर लेना।
क्योंकि दूसरे मैं तो लोगों से अब शरारतें मैं देखता हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा कोई नहीं याद आ रही भाई किसी महफिल के अंदर किसी ने शरारत कर दी हो? चलो बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। अब चिश्ती साहब जी जी ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन नहीं आ गया, जी जी इसका जवाब ही नहीं आ रहा। नहीं यार अपने अपने हवाले से है ना ये, इस वजह से कोई भी अभी वो स्पेसिफिक शाही साहब याद नहीं आ अच्छा वक्त के साथ साथ ना शरारतें भी होती हैं, मज़ा भी होता है, जब- हर चीज़ ही मैं ज़ोहरी साहब किबला मेरे उस्ताद गिरामी जी जी वाह मेरे असातिज़ा में से हैं, वाह। उनकी एक बात मैं शेयर करता हूँ, आपको कोई ना कोई याद आ जाएगी। जी जी कसूर महफिल थी तो ज़ोहरी साहब किबला वो दुबले पतले थे, हाँ आवाज़ छोटी आवाज़ थी हाँ लेकिन सुरीले थे ज़रा। क्या अच्छा वो पढ़ रहे थे तो एक बंदा खड़ा हुआ तो वो कहता है ज़ोहरी साहब ज़रा खोल के। अच्छा अब ज़ोहरी साहब चुप हो गए, कहते भाई गल है भी अपने अपने हक का ख्याल करना चाहिए, जी जी तुसी भी खोलो तो मैं भी खोल जाना। वाह वाह बहुत अच्छा। तो ये छोटी छोटी इस तरह की हमारे एक दोस्त पढ़ रहे थे जी, मियाँ साहब फरमाते हैं, होता है ना हम सना खान हम सारे कहते हैं कि मियाँ साहब फरमाते हैं, सैफुल मुल्क पढ़ते हुए। अच्छा मियाँ साहब तो एक दोस्त आगे वो जो सामीन में से था, वो मियाँ साहब के कलाम का हाफिज़ था। अच्छा जी उसने वो कहने लगा जी कि ये मियाँ साहब का कलाम है। मैंने कहा जी मियाँ साहब का कलाम है। अच्छा जी तो वो जो पढ़ने वाले वो उनको पता चल गया कि ये बंदा कोई सैफुल मुल्क का वो हाफिज़ है या अपना सैफुल मुल्क से याद है जी। उसने कहा जी मैं अपना मियाँ साहब का कलाम पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा किस मियाँ साहब का कलाम पढ़ रहे हो? ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ये मैं मियाँ मुबारक साहब के कलाम की बात कर रहा हूँ। अच्छी वाह 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 अच्छा मैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के कलाम की नहीं बात कर रहा, ये मियाँ मुबारक साहब का कलाम वो फरमाते हैं। अच्छा अच्छा ये जो कुर्रा और नात खान और कवाल हजरात होते हैं ना, इनको बड़े तरीके से लिखे से डिफेंड करना आता है। हाँ। उन्होंने कहा जी भाई होंड खैर कोई नहीं, इस बात को किस तरह मोड़ा जाए, उन्होंने मियाँ मुबारक साहब का नाम ले लिया। मियाँ मुबारक साहब। अल्लाह अकबर। नाज़रीन आप इंजॉय कर रहे होंगे कि देखें आप तो इनकी परफॉर्मेंसेस आप सुनते हैं, नात सुनते हैं, क़िरात सुनते हैं, कवाली सुनते हैं, लेकिन ये बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो ये बातें जारी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। एक छोटे से वक्फे पे मैं जाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ रहिए, हम दोबारा हाज़िर होते हैं।